Hello everyone, welcome to the Phoenix classes. This is the second video of the chapter Cell Biology. Basically I am teaching for the class 9th students. So we all have discussed so many things in the previous video, and in this video I am going to discuss about first of all the cell organelles, the nucleus, nucleoplasm, chromosome and the different structures present in the cell. And after that we will discuss about the different types of solution like hypertonic, hypotonic and isotonic solution. What will happen if we will place a plant cell or animal cell inside that. So we will complete the chapter in this video only. So let us proceed first of all with the cell organelle. So basically in the previous video, last topic I have taught is what? Cytoplasm. So cell organelles are the structure which are present inside the साइटोप्लाज्म. फर्स्ट थिंग इज दैट, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि सेल ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं. एंड वी ऑल हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो ओनली कि साइटोप्लाज्म में ही सेलुलर एक्टिविटी होती है. तो सेल की एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में हो रही है. क्यों? क्योंकि सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में और यही उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. तो सेल ऑर्गेनल्स आर द लिविंग स्ट्रक्चर, दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. थर्ड पॉइंट, दे आर परफॉर्मिंग द सेलुलर एक्टिविटी. फोर्थ पॉइंट, they are the living structure. Fifth point, they are guided by the nucleus because nucleus is the brain of cell. तो इन सेल ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस वहाँ प्रेजेंट है. चलिए तो फिर आगे डिस्कस करते हैं हमको कौन कौन से टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस करने हैं एज पर द क्लास 9 बेसिस. तो पहला सेल ऑर्गेनल आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड राइबोसोम, थर्ड हम जो पढ़ने वाले हैं वो थर्ड जो हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोर्थ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइसोसोम, फिर Golgi bodies, then vacuole, then plastids, then centriole, then peroxisome. 8 types of cell organelles we all have discussed here. So let us start with the first one, mitochondria. Second one is what? Ribosome. Third one is what? I have told endoplasmic रेटिकुलम. सो हमने तीन अभी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फोर्थ वी ऑल हैव डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्गी बॉडीज. गोल्गी बॉडीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम, गोल्गी apparatus, all are the same things. After that we will discuss about the lysosomes, and after that we will discuss about vacuole. After that we will discuss about the different types of plastids. Plastids are basically of three types: leucoplast, chromoplast, and last one is what? Chloroplast. 3 type of plastid we will discuss, and after that centriole, and the last one peroxisomes. So these types of cell organelle we all have to discuss. First of all, let us discuss with the number of membrane present on these structures. First of all, mitochondria is the double membranous structure. Mitochondria is the double membranous structure. So this one is the first membrane, just suppose, and this one is the second membrane. So mitochondria is double membranous structure. Ribosome doesn't have any membrane. Endoplasmic reticulum, single membrane. Golgi body, single membrane. Lysosome also single membrane. Next, vacuole also single membrane. Types of plastid if we are considering, leucoplast is single membranous structure, chromoplast is single membranous, but chloroplast is double membranous structure, and centriole and peroxisomes are also single membranous structure. So basically what we can conclude here that the mitochondria and chloroplast are the cell organelles which are double membranous in nature basically. बाकी सेल ऑर्गेनल्स में एक हमने देखा राइबोसोम जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और एक सेल, बाकी जितने सेल ऑर्गेनल्स हमको दिखाई दे रहे हैं वो सब सिंगल मेम्ब्रेनस है. सो देयर आर 2 सेल ऑर्गेनल्स व्हिच आर डबल मेम्ब्रेनस, एंड वन इज ribosome which is not having any membrane,
and rest all other are single membranous structures. So these are the things we all have to discuss. So first of all, let us discuss with the mitochondria. Mitochondria is also called as semi-autonomous cell organelle. It is also called as semi-autonomous cell organelle. So mitochondria and chloroplast, these are the structure which are considered as semi-autonomous cell organelle. Why? Because they can perform their half of the work by their own. How they can perform? Because the double membranous structures are having its own DNA, plus राइबोसोम. तो दो चीज़ें इनकी अपने पास खुद की होती है, खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है. बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम पे होता है और वो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है, जबकि हमने देखा कि सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म में. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्म में है, उसके बावजूद इसका अपना खुद का डीएनए इसके पास है और इसके पास अपना खुद का राइबोसोम जबकि साइटोप्लाज्म में है, फिर भी ये अपने अंदर रखता है राइबोसोम को. तो हाफ ऑफ द वर्क दे आर performing by their own, that is why they are called as semi-autonomous cell organelle. यही चीज़ डीएनए और राइबोसोम इस क्लोरोप्लास्ट के साथ भी है. क्यों? क्योंकि ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. तो ये दोनों होने की वजह से ये सेमी ऑटोनॉमस बोले जा रहे हैं. सेमी मतलब आधा, ऑटो मीन सेल्फ, खुद से आधा काम करने वाले सेल ऑर्गेनल को हमने बोला सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल. कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं सेमी ऑटोनॉमस? द सेल ऑर्गेनल्स विच कैन परफॉर्म देयर हाफ ऑफ द वर्क बाय देयर ओन, देन दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स. एंड the reason is what? They are having their own DNA and ribosome. They are double membranous, mitochondria and chloroplast. These are the example. Now let us consider what is mitochondria. Basically the outer membrane is called as outer membrane, but inner membrane of mitochondria has a specific name. Inner membrane of mitochondria is called as cristae, C-R-I-S-T-A-E. So cristae is the inner membrane of mitochondria. It is the folded structure. Internally ये क्या करता है? surface area बढ़ाता है. It is for increasing the surface area for maximum ATP production. For maximum ATP production. ATP का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कराने के लिए क्या होता है? यहाँ पे surface area बढ़ाने के लिए ये inner membrane जो है वो क्रिस्टी में कन्वर्ट हो जाती है, फोल्डेड स्ट्रक्चर में. सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी. इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है. सो जो एनर्जी करेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं? एटीपी. क्यों? क्योंकि यही वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी बॉडी यूज कर सकती है. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस है एडिनोसिन उसके साथ, तो हम इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं. ये वो फॉर्म है जो हमारी बॉडी यूज करती है एज ए एनर्जी. तो इसी फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है. किस प्रोसेस से बनाएगा? रेस्पिरेशन से. सो इट परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन. सो सेलुलर रेस्पिरेशन से मतलब सेल की रेस्पिरेशन से एनर्जी बनेगी और वो एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी? एटीपी के फॉर्म में. और वो कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है. चलिए, एनर्जी सिंथेसिस हो गई, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल हो गया. क्यों? क्योंकि इसका अपना डीएनए राइबोसोम है. इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टी बोल रहे हैं. यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, होप सो. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं. पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी बना रहा है. और एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. और इस एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. क्योंकि यही वो फॉर्म है जिसमें हमारी बॉडी एनर्जी को यूज कर पाएगी. और वो एनर्जी बनाया किसने? पावर हाउस ने बनाया. कौन है वो? माइटोकॉन्ड्रिया. किस प्रोसेस से? सेलुलर रेस्पिरेशन में. किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. अब क्रिस्टी जो था वो ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा था. होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी. दिस इज व्हाट द माइटोकॉन्ड्रिया. क्या क्या लिख सकते हैं हम एक बार सम अप करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ सेल ऑर्गेनल. इट इज हैविंग डबल मेम्ब्रेन. इट इज अ लिविंग स्ट्रक्चर. इट इज गाइडेड बाय द न्यूक्लियस. इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, परफॉर्म द सेलुलर एक्टिविटी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल. इट इज हैविंग इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम.
Its inner membrane is called as cristae, which is responsible for increasing the surface area for the maximum ATP production. That means ATP फॉर्म हो रहा है, which is a form of energy, और इस ATP को हम एनर्जी करेंसी बोल रहे हैं. किस प्रोसेस से बन रहा है ये एनर्जी? तो सेलुलर रेस्पिरेशन से बन रहा है, और इसी वजह से, क्योंकि ये एनर्जी बना रहा है, इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं. सो दिस इज व्हाट द माइटोकॉन्ड्रिया. कई सारे पॉइंट हो गए, 14-15 यहाँ से निकालेंगे. तो चलिए यहाँ देखते हैं राइबोसोम. राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनल which doesn't have any membrane. So membrane is absent. Cross means absent. So membrane is absent on the ribosome. They don't have any membrane. So ये राइबोसोम जो है, इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम है प्लैडे. प्लैडे was the scientist who has discovered the ribosome. अच्छा, राइबोसोम जो है इसका काम क्या होता है? It is responsible for protein synthesis. Ribosome is mainly responsible for protein synthesis. अब ये प्रोटीन सिंथेसिस अगर कर रहा है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री. क्या बोल रहे हैं हम? प्रोटीन फैक्ट्री. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्रोटीन की ही सिंथेसिस कर रहा है, और मेनली प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम ही करते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री. चलिए आगे बढ़ते हैं. राइबोसोम जो है, इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर. अगर इंटरनली आप सेल के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बट इंटरनल अगर देखने जाएं तो यहाँ पे 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर. जो ऊपर वाला है इसको हम स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं, और नीचे वाला है उसको हम लार्जर सब यूनिट बोलते हैं. अब स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट के साइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिट, एक यूनिट है स्वेडबर्ग यूनिट, वो साइंटिस्ट के नेम से है. उस स्वेडबर्ग यूनिट के हिसाब से जो इनकी साइज है, उस हिसाब से हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ राइबोसोम रख रखे हैं. एक को हम बोलेंगे 70S राइबोसोम, और दूसरे को हम 80S. S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्वेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. 70S और 80S में जो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट है, दिस इज व्हाट स्मॉलर सब यूनिट, दिस इज व्हाट लार्जर सब यूनिट. 80S में भी वैसे ही होगा, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट. स्मॉलर सब यूनिट जो 80S 70S राइबोसोम में है, वो होता है 30S. ठीक है, 30S होता है. तो लार्जर सब यूनिट क्या होगा? तो समझ में आता है कि 40 होना चाहिए, क्योंकि 30 + 40 70 होता है, बट इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स. ये क्या होगा भाई? इट इज़ 50S. ठीक है, 30 और 50 समझ में आता है कि 80 हो गया, लेकिन ये है क्या? 70, बिकॉज वो डिप्रेशन में कुछ 10 जो है 10 सेडबर्ग यूनिट की क्या हो जाता है, ये अंदर यहाँ पहुँच जाता है. तो टोटल लेंथ जो आती है वो 70S ही आती है. उसी तरीके से यहाँ भी होगा, यहाँ स्मॉलर सब यूनिट 40S एंड लार्जर सब यूनिट 60S होता है. तो यहाँ से अगर कंक्लूड करें तो 100 समझ में आता है, यहाँ से कंक्लूड करें 80 समझ में आता है, लेकिन ये 80 मिलके 70 और ये 100 मिलके 80S है. सो 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स हमने देख लिए. क्या क्या आया हमारे पास पॉइंट राइबोसोम में? इट इज़ अ सेल ऑर्गेनल, इट इज़ प्रेजेंट इन cytoplasm, it performs the cellular activity, it is guided by the nucleus, it is a living structure, it does not have any membrane. It's a very important point. Second important, it is responsible for protein synthesis. That is why they are called as protein factory, and it is discovered by a scientist Plade. It is having 2 subunits, smaller and larger, and it is measured in the Swedberg यूनिट. S जो है वो स्वेडबर्ग दिखाता है. 2 टाइप हमने पढ़े, 70S एंड 80S. तो स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, ध्यान रखना है कि 70S में 30 और 50 होता है, और 80 में 40 और 60 होता है. ये याद रख लेंगे. चलिए इसके बाद बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? अगर जो हमने सेल देखा है, अगर सेल का स्ट्रक्चर हम यहाँ समझना चाहें, जस्ट सपोज दिस इज़ व्हाट सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ व्हाट द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मान लेते हैं, थोड़ा स्पेस रहता है उनमें, खाली जगह होगी. अब यहाँ से जो ये जिगजैग स्ट्रक्चर निकलता है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं. अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स होंगे तो ये रफ हो जाएगा, अगर नहीं होंगे तो कैसा होगा? स्मूथ होगा. तो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप के यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गए. एक जिस पे राइबोसोम होगा वो रफ हो गया, और जिस पे राइबोसोम नहीं होगा वो क्या होगा? स्मूथ हो जाएगा. तो यहाँ से थोड़ा आगे समझते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. होप यहाँ तक आपको दिख गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स. इट इज ऑफ 2 टाइप basically. So 2 types are like what?
the smooth endoplasmic reticulum, and rough endoplasmic reticulum, smooth and rough endoplasmic reticulum. Next one is what? बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम समझने जाएं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस और न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस और न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. क्यों? हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा कि न्यूक्लियर पोर जो था उस पर वो कौन कनेक्ट था? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कनेक्ट है. तो जो कनेक्ट है, जो वे है, उसी से तो चीज़ें पास होगी. अगर हम इस रूम में बात करें तो रूम में जो दरवाज़ा है उसी से तो हम जा सकते हैं. दीवार तोड़ के तो जाएंगे नहीं. जो स्पेस है जहाँ से कनेक्टिविटी है दूसरे रूम की, वहीं पे हम जा सकते हैं. तो कैसे जाएंगे? जब भी वो जो डोर है उससे. उसी तरीके से यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसीडर करना है हमको. नेक्स्ट आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भाई? दे डोंट हैव राइबोसोम ऑन देम. हमने अभी डिस्कस किया था कि राइबोसोम एब्सेंट होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे और राइबोसोम प्रेजेंट होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे. इसको हम SER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसको RER बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं. ये वो एरिया है जिससे मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, अब राइबोसोम है तो राइबोसोम का काम क्या था? यहाँ हमने देखा था प्रोटीन सिंथेसिस है. तो ये भी क्या करेगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. और ये क्या बनाता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लिपिड, और वी कैन से लिपिड सिंथेसिस. लिपिड का मतलब क्या हो गया? लिपिड इज द स्मॉल यूनिट ऑफ द फैट. फैट की मोनोमर को हम क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं. तो बेसिकली ये फैटी स्ट्रक्चर है और ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड बनता है, फॉस्फोरस उसमें ऐड होता है. लिपिड सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है. ये दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो ये दोनों मिलके बनाते हैं लाइपोप्रोटीन. क्या बना है ये? लाइपोप्रोटीन. और लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या हो गया? लिपिड प्लस प्रोटीन इज व्हाट? लाइपोप्रोटीन. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाइपोप्रोटीन. अब ये लाइपोप्रोटीन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इधर नहीं इधर लिखता हूं मैं, थोड़ा सा कनेक्शन मिल पाएगा हमको, लिंक मिलेगा. इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम. कंफ्यूजन होगा हार्मोन एंजाइम क्या है? तो हार्मोन्स क्या है? हमारे बॉडी के सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक सिग्नल भेजने का काम करते हैं. किसी सेल से दूसरे ऑर्गन तक सिग्नल भेजना है तो वो हार्मोन्स के थ्रू होता है. तो सेकेंडरी मैसेंजर है. एंजाइम का क्या काम होता है? डाइजेशन वगैरह क्लास 7 में पढ़ा आपने, उसमें पढ़ा होगा कि एंजाइम सेलेब्री एमाइलेज सलाइवा में है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है. तो एंजाइम्स जो हैं ये दोनों प्रोटीन है. तो एंजाइम्स का बेसिकली काम क्या है? इट इज़ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. जो रिएक्शन कम समय में मतलब ज़्यादा समय में होने वाला था उसको जल्दी कराने के लिए ये एंजाइम बेनिफिशियल है. और हार्मोन मैसेंजर है. तो दोनों प्रोटीन है. दोनों किससे बनता है? लाइपोप्रोटीन से बनता है. सो बेसिकली लाइपोप्रोटीन बनाया किसने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने. और क्या प्रोड्यूस किया? हार्मोन और एंजाइम. इसके बाद भी अगर जितना हार्मोन एंजाइम चाहिए उसके बाद भी अगर ये बच जाता है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ये लाइपोप्रोटीन हार्मोन एंजाइम बनाएगा. उसके बाद भी अगर लाइपोप्रोटीन बच गया तो वो क्या बनाएगा? नेक्स्ट सेल जो बनने वाला, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो पुराने वाले से ही बनना है. तो नेक्स्ट सेल जो बनने वाला है उसकी सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए लाइपोप्रोटीन यूज में आएगा. तो सेल मेम्ब्रेन बनेगा. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं. व्हाट इट इज कॉल्ड? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. Membrane biogenesis means what? The formation of the cell membrane by
द लाइपोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन तो समझ में आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन बन रही है, बायो मतलब लिविंग, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ लिविंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जेनेसिस फॉर्मेशन, बायो लिविंग मेम्ब्रेन का, तो फॉर्मेशन हुआ लिविंग मेम्ब्रेन का, तो हमने मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोला। तो समझ आया होगा। फिर से हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। इट इज द स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर पोर, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जो पोर है उसी से कनेक्टेड है। सो दैट इज वाई दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस और न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इट इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अगर राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस SER, और अगर राइबोसोम है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस RER। नेक्स्ट, राइबोसोम नहीं है स्मूथ में, इसलिए लिपिड सिंथेसिस करता है, रफ में है तो काम ही था प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ये दोनों मिलकर लाइपोप्रोटीन बना रहे हैं। अब ये लाइपोप्रोटीन हार्मोन एंजाइम बनाता है, लेकिन अगर हार्मोन एंजाइम के अलावा भी बच गया अगर, तो वो क्या किस में हेल्प करेगा, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करके सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। यहाँ ध्यान रखने की अब बात है कि प्रोडक्शन हुआ है हार्मोन और एंजाइम का। अब ये हार्मोन और एंजाइम भेज दिया जाएगा किसके पास, गोल्गी बॉडी के पास। ये बना लिया इसने, हार्मोन एंजाइम भेज दिया हमने गोल्गी बॉडी के पास। अब ये गोल्गी बॉडीज क्या करेगा, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोडिफिकेशन ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम, मोडिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम। हार्मोन एंजाइम को क्या किया इसने, मॉडिफाई किया। किसने किया, गोल्गी बॉडी ने। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग पार्ट जो होते हैं किसी भी व्हीकल के, अलग अलग कंपनीज बनाती है और उसके बाद उसको मॉडिफाई करने के लिए अलग कंपनी में भेज दिया जाता है, वहाँ से उसको मॉडिफिकेशन मिल जाता है। वैसे यहाँ बनाया किसने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, लेकिन उसको मॉडिफाई किसने किया, पर्टिकुलर वर्क के लिए मॉडिफाई किसने कर दिया, गोल्गी बॉडी ने किया है। अब मॉडिफाई करके ये छोड़ नहीं देता है, मॉडिफाई करके इसकी ये पैकेजिंग करता है। क्या करता है, पैकेजिंग करता है, पैक कर देता है। किसके अंदर करता है, पैकेजिंग करता है एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम बोलते हैं वेजाइकल्स। क्या बोल रहे हैं हम, वेजाइकल्स के अंदर पैक करता है। वेजाइकल्स क्या है, स्मॉल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये पैक है हार्मोन और एंजाइम, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। अब गोल्गी बॉडी जो है इसमें भी फोल्ड्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था इनर फोल्ड, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी जो है प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ मेम्ब्रेन तो नहीं है लेकिन फोल्ड्स कुछ प्रेजेंट होते हैं। और जो गोल्गी बॉडीज के फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सिस्टर्न्स, CISTERNS, सिस्टर्न्स। सिस्टर्न्स का क्या काम है भाई, यही सिस्टर्न्स डिटैच होते हैं, वहाँ से टूटते हैं तो वेजाइकल बनता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये ऐसे है, अब इसी के ऊपर ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर है, यही यहाँ से ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यहाँ से ये सिस्टर्न और ये आपस में दोनों तरफ से जुड़ गए और ये क्या, वेजाइकल बना लिया। अब इसी वेजाइकल में ये मॉडिफाइड हार्मोन एंजाइम स्टोर्ड है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ हार्मोन एंजाइम हुआ, पैकेजिंग हुई किसके अंदर, वेजाइकल के अंदर। वेजाइकल कहाँ से बना था, सिस्टर्न से, जो इनके अंदर फोल्ड्स हैं उन सिस्टर्न से ये वेजाइकल बना है। नेक्स्ट आगे बात करें तो गोल्गी बॉडीज जो है ये नाम कहाँ से आया है, तो एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्गी, तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इनके नाम पे ही नाम दे दिया गया गोल्गी बॉडीज। क्या नाम है, कैमिलियो गोल्गी, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं गोल्गी बॉडी को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और प्लांट में इसको स्पेसिफिक नेम देते हैं, आप नहीं भी देंगे चलेगा। प्लांट में स्पेसिफिकली ज़्यादातर हम क्या यूज़ करना बेटर है, डिक्टियोजोम हम नाम देंगे तो बेटर है। चलिए, तो यहाँ हो गया कि मॉडिफिकेशन हुआ है हार्मोन एंड एंजाइम का, पैकेजिंग हुई है वेजाइकल में जो कि सिस्टर्न से बना है, किसने डिस्कवर्ड किया है, कैमिलियो गोल्गी ने किया। और अनदर नेम्स जो हैं वो आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट आता है लाइजोसोम। अब जो मॉडिफाइड हार्मोन और एंजाइम है वो पहुंचा दिया गया किसके पास, लाइजोसोम के पास पहुंचाया गया। एंड दीज लाइजोसोम्स आर द स्ट्रक्चर विच आर मेड बाय गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी प्रोड्यूसेस लाइजोसोम, ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि दूसरे सेल ऑर्गेनल से बनता है। अगर ऐसा पूछा गया कि नेम द सेल ऑर्गेनल विच इज मेड बाय द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल और अनदर सेल ऑर्गेनल, तो वो कौन होगा, लाइजोसोम। ये बन रहा है किससे, गोल्गी बॉडी से। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए नेम द सेल ऑर्गेनल विच मेक्स द अनदर सेल ऑर्गेनल, तो क्या होगा, गोल्गी बॉडी, क्योंकि ये दूसरे सेल ऑर्गेनल को बना रहा है। किसको बनाया, लाइजोसोम को। और अगर पूछा गया
कौन दूसरे से बनता है तो वो कौन होगा, लाइसोसोम बनता है किससे, गोल्गी बॉडी से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन समटाइम पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बनने वाला लाइसोसोम, बनाने वाला गोल्गी बॉडी। चलिए लाइसोसोम की अगर बात करें तो दो चीज़ों से हम समझ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये ध्यान दीजिए कि मॉडिफाइड हार्मोनल एंजाइम इसी के पास पहुंचाया गया तो यही कुछ काम करने वाला है। सो लाइसोसोम को दो नाम दिया गया जो ज़्यादातर पूछा जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज द डॉक्टर ऑफ सेल, डॉक्टर ऑफ सेल। दूसरी चीज़ इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं इसको, और स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर ऑफ सेल बेसिकली ये मॉडिफाइड हार्मोन और एंजाइम जो है, बेसिकली ज़्यादातर एंजाइम जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। हाँ, हार्मोन तो हेल्प नहीं करेंगे उस चीज़ में, लेकिन एंजाइम ज़्यादा हेल्प करेगा। कौन सा, वो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसमें 50 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इंक्लूडेड है। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होगा वो क्या करेगा, पूरे सेल में, ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो पूरे सेल में घूमता रहता है, साइटोप्लाज्म में। तो ये साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है और सारी चीज़ों को चेक करता रहता है, वेदर इट इज़ ओके और नॉट। कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही करने की कोशिश करता है। तो कौन सही करता है, आपका इलाज कौन करता है, डॉक्टर करते हैं। उसी तरीके से ये भी हर जगह घूम रहा है और सही करने की कोशिश कर रहा है, रिपेयरिंग करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज़ वाई इसको हमने क्या बोला, डॉक्टर ऑफ सेल बोला। अब दूसरी एक कंडीशन आती है, अगर उसके एबिलिटी में है कि वो उसको सही कर सकता है तो सही करेगा, और अगर नहीं कर सकता है तब फिर क्या करेगा। अगर नहीं कर सकता है तो उस समय वो क्या करने वाला है, वो उस समय सुसाइड कर लेगा खुद, कि हमसे ये हुआ ही नहीं, और नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं हम, सुसाइड कर लो भैया। देखिए क्या है, इसके पास वो एंजाइम ही नहीं है कि वो सेल के उस पार्ट को सही कर सके। तो अगर ये अपने आप का सुसाइड नहीं करेगा तो नेक्स्ट सेल भी उसी प्रॉब्लम से अफेक्टेड हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि 3 सेल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 1 2 3। सेकेंड वाली सेल अफेक्टेड हो गई, इसमें कोई स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो गया और वो लाइसोसोम भी नहीं सही कर पा रहा है। तो धीरे धीरे वो डिजीज़ जो सेकेंड में थी वो फर्स्ट में और थर्ड में भी आ जाएगी। तो वो नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए क्या करेगा, ये लाइसोसोम खुद को क्या कर लेता है, इस एंजाइम के साथ बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। और फटने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरी नंबर 2 सेल जो है वो डेड हो जाएगी, और डेड हो जाएगी तो इन दोनों सेल को अफेक्ट नहीं कर पाएगी, दोनों सेल बच जाएंगे। तो पड़ोसियों को बचाने के लिए अपने ही घर में ब्लास्ट कर लिया, तो वो है लाइसोसोम। इतना ज़्यादा सामाजिक प्राणी है, क्या कर रहा है, अपने आप को ही ब्लास्ट कर लिया ताकि नेबर सेल जो है वो बच सकें। इसीलिए नाम क्या दिया, सुसाइडल बैग। और ये प्रोसेस जिससे वो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑटोलिसिस। क्या बोलते हैं हम, ऑटोलिसिस बोलते हैं। देखिए, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का ब्रेकडाउन, खुद को मार देना ही ऑटोलिसिस कहलाता है। सुसाइडल बैग क्यों है, क्योंकि जब वो सेल की चीज़ों को सही नहीं कर पाता है जो खराब है, तो वो ऑटोलिसिस कर लेता है, अपने आप को ही बर्स्ट कर लेता है। इसीलिए इसको हम अनदर नेम दिए सुसाइडल बैग। तो चलिए, लाइसोसोम में हमने क्या पढ़ा कि जो हार्मोन और एंजाइम आया था, बेसिकली हाइड्रोलिटिक एंजाइम, उसका यूज़ लेता है ये, और डॉक्टर वाला काम करता है और सुसाइडल बैग का काम करता है। और ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल से बना है, किससे बना है, गोल्गी बॉडी से बना है। ठीक है, बेसिकली लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्लांट में भी ये मेंशन किया हुआ है, वैसे तो कहीं लिखा हुआ नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें प्रीवियस ईयर बच्चों ने शायद मुझे दिखाया था, तो लाइसोसोम वहाँ बना हुआ है, नोट किया हुआ है, वहाँ एरो करके दिखाया है। बट प्लांट में लाइसोसोम नहीं होता है, एनिमल्स में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी हो गई लाइसोसोम की। अब बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल जो है ये खाली स्पेस होता है प्लांट में, अगर देखें तो बहुत बड़ा सा। इसी की वजह से प्लांट और एनिमल सेल में जो हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में सेंटर में नहीं पाया जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि वैक्यूल का साइज़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। समय के साथ वैक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो न्यूक्लियस, जब वैक्यूल बहुत बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस कहाँ, साइडवेज ही शिफ्ट हो जाएगा ना, तो साइड शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए वो पेरिफेरी पे पाया जाता है। ये वैक्यूल बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल में। तो बेसिकली अगर यहाँ देखें तो पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। तो यूनिसेलुलर, यूसी लिख दिया मैंने। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि वैक्यूल का काम क्या है, इट इज़ बेसिकली, जैसे अमीबा की बात कर लें, हम यूनिसेलुलर में अमीबा की बात कर लें, तो ये वैक्यूल 2 टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल
और दूसरे को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या है? वो खाली एरिया जिसके अंदर फूड कंज्यूम करता है। अगर हम बात करें अमीबा की, तो सीडोपोडिया से मूव करता है और फूड मटेरियल को इंगल्फ कर लेता है। जिसमें इंगल्फ करता है, जो खाली एरिया होता है जिसके अंदर वो फूड मटेरियल है उसको हम फूड वैक्यूल का नाम देते हैं। उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होंगे और वो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फूड वैक्यूल में हुआ क्या? डाइजेशन हुआ। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा? जब डाइजेशन हो गया उसके बाद ही उसी वैक्यूल को हम नाम दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करके वो अमीबा आगे मूव करेगा और वो वैक्यूल वहीं रह जाएगा। तो वो कहाँ? धीरे धीरे जब अमीबा आगे मूव कर रहा है और वो वहीं है, तो मतलब वो पीछे की तरफ आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, अमीबा आगे जा रहा है, फिर भी वैक्यूल पीछे, और पीछे वो एक्सक्रीट कर देता है तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको। तो एक्सक्रीशन में हेल्प किया किसने? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ने। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनिमल सेल की बात कर लेते हैं। बेसिकली वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, बट अगर होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे होंगे और नंबर में ज़्यादा होंगे, 5, 6, 10, 20 इस तरीके से होंगे, लेकिन साइज जो होगा वो बहुत छोटा छोटा होगा। तो एनिमल सेल में बेसिकली इस वैक्यूल में क्या होता है? इस वैक्यूल में बेसिकली एक्सक्रीटरी मटेरियल स्टोर होता है, जो ये लाइसोसोम लेके आ रहा है, जो चीज़ें डॉक्टर वाला काम किया था, जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको कहाँ भेज देता है? वैक्यूल में भेज देता है। उसी तरीके से प्लांट में भी अगर देखें तो प्लांट में वाटर स्टोरेज करता है और वेस्ट मटेरियल स्टोर करता है। तो इन दोनों में वेस्टेज स्टोर करना काम है, और प्लांट में एक स्पेसिफिक और है क्या कि ये वाटर स्टोर भी कर लेता है। सो दिस इज व्हाट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इन तीनों ने मिल के सेल के अंदर एक ह्यूज काम किया है सेल को क्लीन करने का और सेल की कई सारे काम बनाने का। इसीलिए इनको एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है। ये एक सिस्टम में काम करते हैं। हार्मोन एंजाइम बनाया किसने था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। मॉडिफाई किसने किया था? गोल्गी बॉडी ने। यूज़ किसने किया था? लाइसोसोम ने। उसको बाहर किसने किया? वैक्यूल ने। तो ये चारों मिल के एक साथ काम करते हैं सेल के अंदर। तो अंदर किए तो अंदर के लिए एंडो, किसके अंदर किए? सेल मेम्ब्रेन के अंदर किए हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही है। तो अंदर किए एंडो, मेम्ब्रेन के अंदर किए तो एंडो मेम्ब्रेन, और सिस्टम में काम किए तो सिस्टम बोले। तो क्या हो गया? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अगर पूछा जाए क्या होता है? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं? तो 4 आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। आप रीजन समझ रहे हैं कि इंडो मतलब अंदर, मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, और सिस्टम में काम कर रहे हैं तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोला। ये चारों देख रहे हैं कि एक साथ एक सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक बात समझ में आई होगी।